ہم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرے، ہم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرے، ہم نے زہر کا پیالہ بھی پیا اور نہ مرے، ہم ہیں سقراط کی آواز عیسیٰ کا لہو، آج جو ہم پہ ہنسے گا مر جائے گا مٹ جائے گا، وادی ابر میں پانی کو ترس جائے گا، ہم اور ڈریں باد مخالف سے غلط ہے، ہم تو کہیں بار گردش دوران سے لڑے ہیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میری قیادت بلوچستان بار کونسل سے وائس چیئرمین ولیدی صاحب اور اس پنڈال میں تشریف فرما اسلام آباد بار کے غیور وکلاء، میں آپ کی ہمتوں کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے بلبلے کو سلام کرتا ہوں کہ کل شام 4 بجے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ملک گیر کنونشن کا انعقاد کریں گے، اور آج اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کا یہاں موجود رہنا، آپ صبح 12 بجے سے ہماری مقررین کی تقاریر سن رہے ہیں، آپ کے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ممبران بار، ہمیں کیوں یہ کنونشن منعقد کرنا پڑا، دوسرا کنونشن، اور ہمارا تھیم کیا تھا کہ سیف جوڈیشری، سیف کانسٹیٹیوشن اینڈ سیف پاکستان۔ اسی تھیم کے تحت ہم نے پہلا کنونشن بھی کیا، اور وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کنونشن گردانا گیا، اور وہ وقت تھا ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ اس پاکستان کے آئین کو مسخ کیا جانے والا ہے، اس میں آلائشیں بھری جانے والی ہیں۔ ہم نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی جا رہی ہے، اور اس ترمیم سے پہلے وہ کنونشن ہم نے منعقد کیا۔ ہم نے ایک ایک کر کے آپ کو بتایا کہ اس ترمیم کے بعد کیا ہوگا۔ وہ طاغوتی قوتیں، وہ آمرانہ سوچ رکھنے والے ادارے جو پاکستان کے ہر نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی عدلیہ کو کمزور کریں گے، وہ پاکستان کی عدلیہ کو اپنی مٹھی میں لیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد اگر 26ویں ترمیم پاس ہوئی اور آپ کا یہ خیال ہوا کہ اس ملک میں آزاد منصف جج آئیں گے، اس ملک میں آزاد عدلیہ ہوگی، تو یہ آپ کا خواب ہوگا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد ان طاغوتی قوتوں کے لوگ جو ان کی ہینڈ پک لوگ ہوں گے، جو ان کے حکم کی تعمیل کریں گے، وہ آپ کے ججز ہوں گے۔ ہم نے دیکھا، میری ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ایلیویشن ہوئی، وہاں 10 کے 10 ججز جو لگائے گئے وہ جعلی بھرتی کیے گئے۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری جماعت کے وہ لوگ ہیں۔ یہ ہمارے آئین کی منشا نہیں ہے۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کے جیالوں کو بھرتی نہیں کرنا، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا دھڑا اعظم نذیر طاہر صاحب کا ہے، ہم نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا، ہم نے ان کو ووٹ دیا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ باریں گروی نہیں رکھی جا سکتی، آپ بالوں کو بیچ نہیں سکتے۔ جب میں آپ کا نمائندہ ہوں گا تو میں آپ کی بات کروں گا، میں رول آف لا کی بات کروں گا، میں آزاد عدلیہ کی بات کروں گا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گا۔ چاہے جائے کہ میری جماعت جس نے مجھے پرورش کیا، میں 55 سال سے اس جماعت میں ہوں، وہ لڑتی رہی، ہم بھی لڑتے رہے، وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے، ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی۔ تو ہم مانگتے کیا ہیں ان سے؟ ہم مانگتے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کا وکٹم قیدی نمبر 804 ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔
आप भी इसके विक्टिम होंगे, आप भी ये म्यूजिक फेस करेंगे, और इस जहां से आज वो कैदी गुजर रहा है आप भी वहां से गुजरेंगे। खुदा का वास्ता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, सियासी एजेंडा नहीं। यहाँ लोगों ने बातें की जी ये आजाद नजीर का दोस्त है, मैं कभी इनकार नहीं करता, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मुझे डिक्टेट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे डिक्टेशन दे सकता है। तो ये करने क्या जा रहे हैं? आपने अदलिया देखी, और इस कन्वेंशन में जो सबसे फंडामेंटल पॉइंट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये 10 फरवरी को होने क्या जा रहा है। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का इजलास वहां मुनक्कद करने जा रहे हैं। वहां 8 उन जजेस को एलिवेट किया जाएगा जो इनके मनपसंद लोग होंगे। हमने ये मुतालबा किया, हमने ये मुतालबा नहीं किया कि अपने मनपसंद लोग भर्ती करो और 24वीं तरमीम का फैसला कराओ। हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है ये बददियानती पे मबनी इजलास है। हम आइन में तरमीम के हक में हैं, हम कानून में तरमीम के हक में हैं, लेकिन जो तरमीम बदनीति की बुनियाद पे की जाए वो तरमीमें कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हुआ करती हैं। क्या किया आपने? आपने वो जो हैयत थी कमीशन की, वहां आपने एग्जीक्यूटिव को भर दिया वहां से। मुझे कहा गया, मुझे सबके सब लोगों ने कहा, मुझे हुकूमत ने भी कहा, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, बांगे धोल कहता हूं कि आपको हम एलिवेट करते हैं, लेकिन आपको बात करनी होगी, आपको बताना होगा कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं ऐसी जजी पे लानत भेजता हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी, आप जजेस करने नहीं देते। मुझे हाई कोर्ट के सब जजों ने कहा कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आपको एलिवेट हूं। तो मैंने कहा ऐसी जजी हम छुट्टी की नोक पे रखते हैं, और आइंदा भी हम ऐसी ऐसी जजी को एलिवेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम मुतालबा भी करते हैं, हम जुडिशियल कमीशन को मुतलबे भी करते हैं कि जिस बदनीति के बुनियाद पे आपने ये इजलास बुलाया है इसको फुलफिल फॉर मुलतवी किया जाए। और सबसे पहले जो पहला मुतालबा है आज हमारा, जो इस पिंडाल का पहला मुतालबा है, जो इस कन्वेंशन का पहला मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटीशन, उसकी जो वायरस को चैलेंज किया गया, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने चैलेंज किया, उसका फैसला जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको करने दिया जाए। अगर ये जजेस ये फैसला करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम बदनीति पे मबनी नहीं है, अगर वो ये फैसला करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के से मुतादम नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर स्टोरी से मुतादम नहीं है, आइन अदलिया की आजादी को कदगन नहीं लगाती, तो हम उनका फैसला मानेंगे और हम सर निगुम होंगे आपके पास। लेकिन ये नहीं हो सकता। नो वन कुड बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 जजेस जिनको आप एलिवेट करने जा रहे हैं, ये वहां जाके टिल्ट करेगा वो जो डिवीजन है वहां, और उसके बाद आप कहेंगे जी कि बाहर का अलीम अब्बासी का ये मुतालबा था कि फुल कोर्ट में मामला सुना जाए, तो फुल कोर्ट में मामला सुन लिया। हमें नवश्ता दीवार हम पढ़ सकते हैं। जब ये एलिवेशन हो गई 8 की 8, उसके बाद 26वीं तरमीम के साथ क्या होगा हमें इस बात का इल्म है। हम नवश्ता दीवार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है जुडिशियल कमीशन से कि आप 10 तारीख वाला इजलास फिल फॉर मंसूख करें, मुलतवी करें उसको, जब तक के 26वीं तरमीम की पिटीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट न कर ले, ये इजलास न बुलाया जाए। इसके बाद जो 3 एलिवेशन हुई, जो ट्रांसफर्स हुई, ये कहा गया कि जी आर्टिकल 200 तो बहुत पहले का आर्टिकल है। मैंने आपसे अर्ज किया, हमें ट्रांसफर्स की बात नहीं करते, हम किसी सूबे की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि आपकी ये ट्रांसफर बदनीति पे मबनी ट्रांसफर्स हैं। आप
उन जजेस का रास्ता रोकने के लिए जो आजाद जजेस हैं, जो अपनी जमीर के मुताबिक फैसला करते हैं, उनकी एलिवेशन को एज ए चीफ जस्टिस रोकने के लिए ये नीति पर मबनी आपने ट्रांसफर्स की हैं। और हमें तो ये कहा गया था कि जी 2 एलिवेशन आपकी कर दी गई और बाकी भी 2 इंशाल्लाह इस्लामाबाद बार से होंगी, ये मुझे बताया गया, ये मुझे कहा गया। हमारा ये हमेशा स्टांस रहा इस्लामाबाद बार का, इस्लामाबाद बार काउंसिल का, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की चारों सूबों की इकाई है। इसमें मेरा भी इतना हक है जितना बलूचिस्तान से तशरीफ फरमा यहाँ मेंबर बार का हक है, जहाँ केपी से तशरीफ फरमा मेंबर बार का हक है, जहाँ सिंध से तशरीफ फरमा मेंबर बार का हक है। अगर आपका यह ख्याल है कि यहाँ सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए तो सिंध की नुमाइंदगी मौजूद है, यहाँ इंडस लायर फोरम मौजूद है, मेहरान लायर फोरम यहाँ मौजूद है। अगर आपका यह ख्याल है कि केपी केस की नुमाइंदगी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पख्तून लायर फोरम मौजूद है, कमाल के लोग हैं, कम्पिटेंट लोग बैठे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं और ये होता रहा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हजरत मुल्ला इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, मियां गुल हसन इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, सरदार एजाज इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, तारक जहांगीरी केपी के से था, लेकिन इस बार के मेंबर थे। आपने सूबों को नुमाइंदगी दी, डोमिसाइल की नुमाइंदगी दी, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये मन माने फैसले नहीं करेंगे। और आपने हमें दिया क्या, ये शगुफे दिए क्या हमें? या तो आप कहते ना जी कमाल के जजेस हैं, इनकी ये आप जजमेंट देखिए, इनका कानून में ये रोल देखिए। एक जज साहब जो बलूचिस्तान से तशरीफ फरमाए, हफ्ता पहले आपने उनको वहां एलिवेट किया, बहुत चहेते थे आपके, तो यहाँ आप उनको इंडक्ट कर देते। ये वाया बठिंडा लाने की क्या जरूरत थी आपको? इसी तरह जो सिंध से हमारे जज को यहाँ भेजा गया, हमारा जैसे मेरे दोस्तों ने भी कहा और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, हमारा कोई ब्रीफ नहीं है, न हम हुकूमत का ब्रीफ रखते हैं, न हम जजेस का ब्रीफ रखते हैं। खुदा का वास्ता जो आपने खुद तरमीम की, जो अंडर क्राउड है जो तरमीम आपकी, आप उस तरमीम की बुनियाद पे जो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जजेस हैं, किसी को आप नॉमिनेट कर दीजिए, हम इतराज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आप हमारे ऊपर अपने मर्जी का चीफ जस्टिस मुसल्लत करना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। ये इस निजाम के साथ मौकरी है, इस सिस्टम के साथ जुल्म है, और ये हमारी बार एसोसिएशन के साथ जुल्म है, यहाँ जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनके साथ जुल्म है। और आप डिवाइड करेंगे, आप जुडिशरी को ऑलरेडी डिवाइड कर चुके और इसके बड़े भयानक रिजल्ट्स निकलेंगे, आप उनको विजुअलाइज नहीं कर रहे। और मुझे जो हमारे दोस्त थे, मैंने हमेशा कहा, बाहर मेरी जानती है कि हमने प्रोजेक्ट्स लिए वहां 12 अरब के उनसे, मैं उनका मशकूर और ममनून हूं। लेकिन मैंने हमेशा जब उनसे बात हुई, मैंने कहा खुदा का वास्ता ये जुल्म न कीजिए, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारे इलेक्टेड लोग रहे, आप मेरे लीडर रहे, आपके हाथों आइन का ये कत्ल मुझे अच्छा नहीं लगता। आइन आपके हाथों ये जो आपने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया, इदारों को यरगमाल बनाते जा रहे हैं और बारों को भी बनाते हैं, ये मुझसे अच्छा नहीं लगता। हम क्या करें, हम कहां फरियाद करें, हम किससे बात करें? सियासी जमातों की बात कर लीजिए। हामिद खान साहब ने मैंने उनसे कहा, हामिद खान साहब, हमें तो आप कहते हैं कि आइए शहराई दस्तूर पे, हम आ जाएंगे, हम आरे के नीचे सर रखने को तैयार हैं। आपने क्या किया, आपकी जमात ने क्या किया? मैं हमेशा कहता हूं, ये बारियां लगाती हैं तमाम की तमाम सियासी जमातें। आज वो जमात जिसका कैदी 804 है, सबसे अगर इस तरमीम का विक्टिम है, सबसे बड़ा विक्टिम है, तो वो कैदी नंबर 804 है। आपने क्या किया? आपने कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें मौलाना का ड्राफ्ट मंजूर है। आपने तमाम लीडरान ने ये कहा कि हम ऑन बोर्ड इन तरमीमात पे, और तारीख में आपका ये किरदार हमेशा स्याही हरूफ से देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो उन्होंने कालक मल ली। ये तरमीम करने के बाद आपका जो रवैया रहा, तारीख के औराक में ये बात लिख दी गई
کہ یہ 26वीं तरमीम यूनानिमसली पास हुई। क्या अच्छा होता कि आप 1 थे, आप 10 थे, आप 12 थे, आप 20 थे, आप इस तरमीम के खिलाफ वोट करते। आपने वोट नहीं किया क्योंकि आपने इक़्तिदार में आना है, और इक़्तिदार में आने के सारे रास्ते रावलपिंडी से निकलते हैं, फैजाबाद की तरफ से आप अंदर दाखिल होंगे। ये तो हमारा किरदार है सियासी जमातों का। और मेरी अपनी जमात को देख लीजिए, हमारे हजारों लोग जिन्होंने फांसियों के फंदे चूम लिए, जिन्होंने शाही किले बर्दाश्त किए, जिन्हें कोड़े लगे, और हमें बताते रहे आप कि जी बहुत जल्द इस मुल्क में इनकलाब आएगा, इस मुल्क में सुर्ख इनकलाब आपकी दहलीज पे है, और आप कहां बैठ गए जाके। ये जुल्म है, सियासी नजरियात के साथ जुल्म किया आपने। आपने पाकिस्तान में उस वर्कर के खिलाफ जुल्म किया जो जमहूरियत पे यकीन रखता है। अब कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। अब आप जमहूरियत का राग अलाप नहीं सकते। आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी उनकी लोली बन बैठे। आपके मेरी उस जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मेरे नजरियात थे शहीद बाबा के नजरियात थे, लेकिन आपकी जमात का कोई ताल्लुक नहीं हमारे नजरियात के साथ, हमारे अफकार के साथ, हमारी तालीमात के साथ। तो बहुत सारा वक्त हुआ खाने और आपके दरमियान भी हाय नहीं होना चाहता। गुजारिश आपसे ये है कि आज जो हमारा एलामिया होगा वो मैं आपको शेयर कर देता हूं और आपसे मैं इसकी राय भी लूंगा। हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो 10 फरवरी का होने वाला इजलास है इसे फिल फोर मुलतवी किया जाए। आपको मंजूर है ये बात? अपने हाथ खड़े कीजिए। हम ये मुतालबा करते हैं कि रात की तारीकी में बदनीति में मबनी ट्रांसफर किए गए जजेस को फिल फोर उनकी अपनी हाई कोर्ट्स में वापस भेजा जाए। ये बात आपको मंजूर है? हम आपसे इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटीशंस आपके पास है सुप्रीम कोर्ट के पास, उन तरमीम का फैसला जो अवेलेबल 16 रुकनी बेंच है, जो 16 रुकनी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, जो आज की तारीख में मौजूद हैं, ये सारी पिटीशन उनके पास भेजी जाएं और वो फैसला करेंगी कि क्या ये तरमीम आइन से मुतसादम है या नहीं है। आपको ये बात मंजूर है? आप रुक नहीं रहे। आप, और ये मैं अपने ईमान से बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन मार्शल लॉ रहे। ज़िया-उल हक का नंगा मार्शल लॉ था, जहां कोड़े, जहां फांसियां, जहां शाही किले सब ने हमने देखे। लेकिन खुदा की कसम जो आलाइशें हमारे इस आइन में इस दौर में भर दी गई, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे फंडामेंटल तरामीम थी, जिन्होंने हमारी जमहूरियत का चेहरा मसक दिया, जिन्होंने आजाद अदली का ख्वाब चकनाचूर कर दिया हमारा। और हम मुशर्रफ को गालियां देते रहे, गो मुशर्रफ को, गो मुशर्रफ को। वही मुशर्रफ था जिसने इस मुल्क में, आपको यह भी शर्म आनी चाहिए कि उस दौर में मीडिया को आजाद किया गया, सहाफत को आजाद किया गया। ये सारे जो हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस को लाइसेंसेस जारी किए गए, और सुबह से शाम तक हम मुशर्रफ को गालियां देते थे अदलिया तहरीक में, ये कर्नल जनरल फलां फलां। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि फलां को उठा लो, फलां को बिठा लो, फलां को खत्म कर दो। आज आप एक एक करते करते सारे के सारे इदारे आपने ढेर कर दिए। हम आपसे यह भी मुतालबा करते हैं कि जो पीका एक्ट के तहत आपने जो तरामीम की, उन्हें भी फिल फोर वापस लिए जाए। आपको ये मंजूर है? हम ये जो मुतालबात थे, हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और इस्लामाबाद में हमारा कोई फेवरेट जज नहीं है, लेकिन जो आपकी अबली तरमीम है, हम जो आपने 2 जजेस डिबेट किए, हम आपके फंक्शन में भी गए, हमने वहां उनकी हल्फ बर्दारी में शिरकत की।
اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ آپ نے 2 ایلیویشن اسلام آباد سے کی، ایک جج کے پی سے تھے، ایک جج پنجاب سے تھے، لیکن جو اسلام آباد بار کے ممبر تھے آپ نے ان کو ایلیویٹ کیا، ہم مطمئن رہے، لیکن ہم ان 3 ٹرانسفرز کو نہیں مانتے۔ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ آپ نے کی، یہ آپ نے جو ججز آلریڈی ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے ایک بات تو آپ جان چھڑائیں گے، جو چیف جسٹس ہمارا آئے گا، جو حقیقی چیف جسٹس ہوگا، اس کے بعد اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو آلریڈی ہائی کورٹ میں پرانے ججز ہیں فنڈامنٹل جو لیٹیگیشن ہے اس کے فیصلے وہ کریں گے، یہ آپ بھول جائیے۔ یہ جو 3 چشم و چراغ لائے گئے، یہ بہت سوچ کے لائے گئے، یہ انڈرٹیکنگ کے بعد لائے گئے، تو یہ جو فیصلے کریں گے وہ فیصلے اس کی ہم نوشتہ دیوار ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کنونشن کے حوالے سے ہمارا بالکل واضح سٹانس ہے، ہم نہ کسی سیاسی جماعت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، نہ ہم حکومت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، اور ہم پنجاب بار کونسل کی جو آج پریس ریلیز جاری ہوئی، ہم اس پہ بھی اظہار افسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ اسلام آباد بار کونسل کی ساری قیادت جہاں موجود ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی ساری قیادت جہاں موجود ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ساری قیادت جہاں موجود ہے، کوئی ایک ممبر نہیں ہے ان 3 کیبنٹس میں جو ہم سے ڈیفر کرتا ہو، جس کا کوئی اور ویو ہو۔ تو اس لیے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ بار ایسوسیشنیں، بار کونسل ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گی۔ آپ ایسا کریں گے تو ہم ریسٹرین شو کرتے ہیں۔ آج میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن سوائے اس کے کہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، ہم اور کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے پنجاب بار کونسل کے حوالے سے۔ تو آئندہ کا لائحہ یہ ہوگا کہ ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر ہمارا ایک جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا 3 باز کا، اور اس کے بعد ہم ایک اور کال دیں گے اسلام آباد کی حد تک۔ جو ہماری الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ کال دیں گی، اور کال دینے کے مجاز ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا، کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اسلام آباد کی منتخب قیادت وہ ہے جس کو ہم ووٹیں دیتے ہیں، جس کو لوگ ووٹیں دیتے ہیں، وہ میں ہوں یا میں نہ ہوں۔ تو ہم ان کے مینڈیٹ کے تابع جو فیصلے کرتے چلے جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسو کریں گے۔ لیکن سر دست ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ یہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ واپس لیں، اور جو 10 فروری کا آپ نے اجلاس رکھا ہوا ہے اس کو ملتوی کریں، اور 24ویں آرمی ترمیم کے فیصلے آپ سپریم کورٹ سے کرائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں کہ آپ صبح سے تقریباً 11 بجے سے یہاں تشریف فرمائے، اور آپ سما خراشی بھی ہوئی، اور ظاہر ہے ہم سب، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے۔ اسٹرائک کی حوالے سے بات کر رہے تھے ریاست صاحب، وہ بھی ہم ان سے آج جو ہمارے مطالبات ہیں یہ ہم ان رائٹنگ بھیجیں گے ان سارے اداروں کو، ان سارے فورم سے۔ تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے، اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے اس کے بعد ہم پرماننٹ اسٹرائک ہوگی یا ڈے ٹو ڈے ہوگی، جو بھی ہوگی ہم اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔